तो इस टॉपिक में हम कुछ प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं जो होते हैं ड्यूरिंग द change of the state of matter. When the state of matter change, when solid is liquid change to liquid, liquid is changed to gas. These are the process take place. Now these processes are fusion, vaporization, condensation, solidification, sublimation and deposition. Now what is the fusion? Fusion means conversion of solid to liquid. Means solid, when solid is converted into liquid, that process is called as fusion. Example we can give of ice. When the ice is retained, what is the form? Water. Ice is in a solid state and water is in a liquid state. And this process is called as fusion. What is the fusion? It is a process in which solid is converted to liquid by the heating. हीट करने की वजह से ही वो कन्वर्ट हो सकता है। बाद में है वेपराइजेशन। नाउ व्हाट इज द वेपराइजेशन? कन्वर्टिंग द लिक्विड टू अ गैस is called as the vaporization. Example, we know that when we boil the water, when we heat the water, it form the water vapor. जब अपन पानी को गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, तो पानी बॉईल होने के बाद उससे क्या बनता है? वाटर वेपर बनता है। और वाटर वेपर जो होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में होता है। मतलब हमने क्या किया? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। What is the vaporization? It is the process by which liquid is converted to gas by heating, or we can say boiling also. Okay. Now next is condensation. Now what is the condensation? Now condensation is the process of converting the gas into a liquid. मतलब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, मतलब जो गैसेस सब्सटेंस है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं वाटर वेपर को कूल करूंगा तो क्या हो जाएगा? वाटर में। यहाँ पे मैंने हीट नहीं किया है, यहाँ पे मैंने कूल किया है। व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन वाटर वेपर इज कूल it forms water, means the gas is converted into a liquid, that is called as condensation. What is the condensation? It is the process by which gaseous substances are converted into liquid by cooling. अब तक अपन ने जो यूज किया फ्यूजन और वेपराइजेशन में वो था बाय हीटिंग, और अभी जो कंडेंसेशन में यूज करेंगे वो है बाय कूलिंग। बाय कूलिंग we are converting gas to liquid, that is called as condensation. After condensation, there is a solidification. Now, what is the solidification? To convert the liquid into a solid state. Means there is a water. I cool the water in the refrigerator, it will form ice. Means water is converted into ice. Water is liquid, ice is solid. Ice is solid, water is liquid. Means what I have done? I converted the liquid to solid by cooling. That is called as solidification. What is solidification? The process by which we convert liquid to solid by cooling is called as solidification. Now next two are somewhat different. The examples are also different. Now you have to learn the examples also. In exam if they have the definition, you have to give the definition with example. Without example, you will not get full marks. You will get half marks only. If you want full marks, you have to write the examples also. Now next is the sublimation. Now what is the sublimation? To convert solid direct to gas. Solid को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं sublimation. एग्जाम्पल हम लेंगे कैम्फर। ये जो कैम्फर होता है, कपूर, तो कपूर हम यूज करते हैं पूजा के समय। आफ्टर बर्निंग दिस कैम्फर इट डायरेक्टली कन्वर्ट टू गैस। कैम्फर जलाने के बाद कुछ लिक्विड बनता है क्या? नहीं, डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके साथ साथ नेप्थलीन बॉन्ड, जो नेप्थलीन होता है वो भी वैसे ही होता है। डांबर की गोली जो हम रखते हैं कपड़ों में,
तो वो ऐसे ही होता है, वो भी सॉलिड रहता है और अपने आप गैस में कन्वर्ट होते होते रिड्यूस होते जाता है, छोटा होते जाता है ना, जब तक क्यों वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने की वजह से कम होते जाता है। That is the example of sublimation. What is the sublimation? Conversion of solid to direct gas is called as sublimation. Now next is the deposition. Now what is the deposition? Deposition means the process by which gas is converted to solid. ऐसे प्रोसेस जिसमें गैस डायरेक्टली कार में कन्वर्ट की जाती है सॉलिड में, और हमें इसका एग्जांपल मालूम है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर प्रेशर के साथ भरा जाए, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर प्रेशर लगाया जाए तो हमें क्या मिलती है? ड्राई आइस, जो कि होती है सॉलिड। आपने ड्राई आइस के बारे में यूट्यूब पे बहुत बार देखा होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर के साथ अगर अपन ने किसी चीज में भरा तो क्या होगा? प्रेशर लगाया कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर तो वो क्या में कन्वर्ट हो जाता है? ड्राई आइस में। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिपोजिशन। We are converting gas directly to the solid by pressure. That is the deposition. Understood? These are the 6 different processes take place during the change in the state of matter. जब state of matter change in the solid to liquid, liquid to gas, gas to solid, solid to gas, तब ये सब processes होते हैं। और एक चीज हम पढ़ेंगे, हमें मालूम है कि हमें टेम्परेचर जो गिनते हैं वो डिग्री सेल्सियस में गिनते हैं, और कुछ लोग उसको केल्विन में गिनते हैं। तो हमें एग्जाम में सवाल आते हैं कि डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करना है। मतलब है जो सेल्सियस और केल्विन का स्केल है टू काउंट द टेम्परेचर। टेम्परेचर गिनने के लिए स्केल यूज की जाती है। जैसे कि लेंथ के लिए अपन मीटर सेंटीमीटर नाम का स्केल यूज करते हैं, वेट के लिए हम केजी ग्राम स्केल का यूज करते हैं, वैसे ही टेम्परेचर गिनने के लिए हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन का यूज करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है, हमें आगे करना। तो हम देखेंगे हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें केल्विन that is equals to degree Celsius plus 273। मतलब केल्विन को मुझे केल्विन ढूंढना है, केल्विन निकालना है, मुझे डिग्री सेल्सियस दिया और केल्विन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? डिग्री सेल्सियस प्लस 273 उसमें ऐड कर दूंगा। एक एग्जांपल दूंगा, मेरे को 30 डिग्री है, ठीक है, इस 30 डिग्री को मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करना है, मुझे डिग्री सेल्सियस दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, तो मैं डिग्री सेल्सियस की जगह क्या लिखूंगा? डिग्री सेल्सियस की जगह मैं लिखूंगा 30 प्लस 273। 30 प्लस 273 कितना होता है? 303। ठीक है, सही। तो एक कितना केल्विन हो जाएगा? 303 केल्विन। तो समझ में आया मैंने कैसे कन्वर्ट किया? तो मैंने क्या किया, डिग्री सेल्सियस अगर दिया गया तो मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं, केल्विन इक्वल्स टू C प्लस 273। तो 273, तो डिग्री सेल्सियस कितना दिया गया था? 30 को मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना था, 30 डिग्री सेल्सियस को मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना था। तो मैंने क्या किया, 30 को डिग्री सेल्सियस में आपके पास होगा 273 उसमें ऐड कर दिया, तो मुझे मिला है 303 केल्विन। और एक एग्जांपल लेंगे हम, केल्विन इक्वल्स टू, अभी समझो कि मेरे पास दिया है 200 डिग्री सेल्सियस, तो कितना केल्विन होगा? तो 200 में रख दूंगा प्लस 273, तो केल्विन कितना होगा? 473 केल्विन। समझ में आया? तो अगर मुझे केल्विन निकालना है तो मुझे डिग्री सेल्सियस में क्या ऐड करना पड़ता है? 273। अगर मुझे केल्विन दिया गया है और मुझे डिग्री सेल्सियस निकालना है तो कैसे निकालना है? तो डिग्री सेल्सियस निकालना है, डिग्री सेल्सियस निकालना है तो कैसे निकालेंगे?
मुझे क्या दिया है, केल्विन दिया है। तो केल्विन में से मैंने 273 माइनस किए तो मुझे क्या मिलेगा, डिग्री सेल्सियस। समझो कि डिग्री सेल्सियस क्या है, 473, सॉरी केल्विन कितना है, 473 केल्विन। तो मुझे डिग्री सेल्सियस निकालना है। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन कितना दिया है, 473 माइनस 273। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 473 माइनस 273, 200 डिग्री सेल्सियस। जब मुझे सेल्सियस निकालना है तो केल्विन में से 273 माइनस करना है, और जब मुझे केल्विन निकालना है तब 273 सेल्सियस में ऐड करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं टू कन्वर्ट द केल्विन टू Celsius and to convert Celsius to Kelvin. Understood what we study? We have studied the different processes and we study how to change degree Celsius to Kelvin, Kelvin to degree Celsius. Okay. In next lecture we will study about the evaporation. What are the evaporation and the factors affecting evaporation? Thank you.